Yes, good afternoon, Rohit. Good afternoon, sir. Ask your friends so that they can join. Okay, Join, sir. join quickly. Okay. So shall we start? Yes. Shall we start? Yes, sir. Okay. So in our last class, we were discussing about the controlling force in the governor. That was the last topic of this governor. So controlling force के बारे में मैंने बताया आपको कि there are two type of forces acting on a ball, or precisely the fly balls of the governor when they are rotating about the axis of the governor spindle axis, and these two forces are centrifugal forces and the centripetal forces. The forces that is pulling that ball towards the axis of rotation is because of the centrifugal force, and the force that is making the ball to go out is the centripetal force, right? So for the stable equilibrium of the governor, this restoring force must be more than that is your disturbing force, right? Now ये स्टूडेंट्स जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको सुबह मैसेज नहीं मिलता है क्या कि जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ फिर मैं दोबारा भेजता हूँ मैसेज ज्वाइन क्विकली, तब आप ज्वाइन करते हो? इट इज अंडरस्टूड कि अगर मैंने आपको मैसेज भेजा है एंड आई एम टेकिंग द क्लास, you should come and join the class. Yes or no? Okay. So controlling force के बारे में कुछ पढ़ते हैं. When the balls of a governor rotate in their circular path, the centrifugal force on each ball tends to move it outward. This is resisted by an equal and opposite force acting radially inwards and is known as the controlling force. Right? The controlling force is supplied by the weight of the rotating mass in a watt governor. अगर वॉट गवर्नर की बात करूं तो स्लीव के ऊपर जो मास होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो मास होता है, दैट इज बैलेंसिंग और यू कैन से कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द गवर्नर. यही तो आपको कंट्रोलिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वॉट गवर्नर में, वेट.
अगर मैं बात करूं आपके हार्टनल गवर्नर की, सो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है आपकी कंट्रोलिंग फोर्स है वो कहां से आ रही है, यहाँ पे जो स्प्रिंग लग रहा है स्प्रिंग फोर्स की वजह से। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। सो द कंट्रोलिंग फोर्स इज सप्लाइड द वेट फॉर वॉट गवर्नर, weight of the mass and the sleeve for the porter governor, and compressed spring in case of Hartnell governor, right? तो कंट्रोलिंग फोर्स का जो ओरिजिन है वो कौन कहां से है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर्स में, ये इसमें बताया है, राइट? A graph showing the variation of controlling force and the radius of rotation is called the controlling curve और diagram। जैसे एक हमने कोई प्लॉट बनाया और इसको हम प्लॉट करते हैं क्या, दैट इज रेडियस एंड कंट्रोलिंग फोर्स, दोनों के बीच का हमने जो ग्राफ बनाया, दिस ग्राफ विल शो यू द वेरिएशन इन द कंट्रोलिंग फोर्स, और इसको ही हम कहते हैं कंट्रोलिंग कर्व और कंट्रोलिंग डायग्राम। ठीक है, दिस कर्व इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नर। ओके, कि स्टेबिलिटी कैसी है गवर्नर की, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ग्राफ की पोजीशन कैसी है। अगर ग्राफ कुछ सेट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उस तरह से आता है जो हम स्टेबिलिटी के लिए चाहते हैं, that we can say the governor is stable. If there is a variation in the curve, that means there is some abnormality in the curve and governor also, so it might be unstable governor or something like that. Now controlling force की अगर बात करें पोर्टल गवर्नर की, तो we have evaluated this formula for your portal governor and this formula for your Hartnell governor. If you can recall these things, we have developed this relationship. Now, from the relations, the values of controlling force can be calculated for different radii. अलग अलग रेडियाई पे हम निकाल सकते हैं कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है, and we can plot them on the graph. So this figure A, you can see AB, you can see the AB line, this is the curve, this curvature on the controlling force curve, neglecting the friction, plotting against the ball radii. Alternatively, as the controlling force is equal and opposite to the centrifugal force, ठीक है, it may be computed from the relation that is F is equal to mr omega square, okay, for different radii and the corresponding speeds. इससे हम different points पे different radii के according force निकाल के यहाँ controlling force और radius पे जो points आएंगे उनको plot कर देंगे. This relationship also indicates that for a particular speed, the controlling force is proportional to your radius. Thus, a number of lines such as OC, OC2, OC1 may be drawn on the diagram providing the value of controlling does for different radii at particular speed. So these lines are speed lines. Basically, OC1, OC2, OC are the speed lines. अगर हमें कोई speed given है and I draw that line here, and the point at which it intersect, we can find the इस point पे कितना radius है गवर्नर का and what is the controlling force at this point. ठीक है ना, ये दोनों चीज हम निकाल सकते हैं. So this intersection of speed curve with the controlling force curve provides the speed of the governor corresponding to that radii, right? समझे बात को? Suppose that the point P represents the mean speed of the governor and R is the corresponding radius of balls. ठीक है. Now if the speed increases with P1, देखो P1 बढ़ा तो speed बढ़ी, controlling force भी बढ़ेगी क्योंकि mr omega square है. तो P1, the radius of ball increases to R1. Yes, R1 बढ़ा. Thus moving the sleeve up and the closing the throttle valve to the required extent. Similarly, if the speed decreases to point P2, यहाँ पे देखो इस वाले कर्व में, A वाले में, the radius of the balls decreases to R2, resulting in the lowering the sleeve and the opening the throttle valve further, so that the speed can be maintained. Okay. So this would increase the speed.
This type of governor is said to be a stable governor. तो इस तरह का जो गवर्नर होगा उसको हम कहेंगे दिस इज अ स्टेबल गवर्नर, राइट। नाउ आप दूसरा वाला कर्व देख लीजिए, आप दूसरे कार वाले कर्व पे आ जाइए, इस वाले पे। नाउ कंसिडर a controlling force curve of this type shown in figure B. In this case, the point again P represent the mean speed of the governor. ये बीच वाला जो पॉइंट है मीन स्पीड है। If the speed is increased to P1, देखो C1 का स्लोप देखो, C से ज्यादा है, इसका मतलब स्पीड ज्यादा है। This means the sleeve is lowered and the throttle valve is further open to increase the fuel supply and the consequently increasing the speed. देखो पहले ही स्पीड बढ़ रही है, अब गवर्नर और स्पीड बढ़ा रहा है। Similarly, decreasing the speed, the sleeve is moved up, closing the valve and thus further reducing the speed. Such governors are therefore unstable governors. So you can see the plots of different controlling forces and you can judge that this is the stable governor and this is unstable governor. आप दो लाइन ड्रॉ कीजिए, एक मीन और एक मीन लाइन ड्रॉ कीजिए एंड दो आप एक डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग स्पीड, एंड यू विल फाइंड अगर इंक्रीजिंग स्पीड से आपका रेडियाई बढ़ रहा है दैट मींस इज अ स्टेबल गवर्नर, अगर आपका स्पीड बढ़ने से आपका रेडियाई घट रहा है दैट मींस इज अ अनस्टेबल गवर्नर, राइट। सो फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ यू कैन जज दिस whether the governor is a stable type of a governor or the governor is unstable. So thus the governor to be stable, the slope of the controlling force curve should be greater than that of the speed curve. दो स्पीड लाइंस का जो आपका स्लोप है उससे ज्यादा होना चाहिए आपका जो कंट्रोलिंग फोर्स कर्व का जो स्लोप है, अगर नहीं है दैट मींस योर गवर्नर इज अनस्टेबल। ये चीज यहां से निकल के आती है। नाउ सी दिस फिगर, a controlling force curve AB which sometimes may be obtained in some spring loaded governors by suitable adjustment. This can be observed that at the speed represented by OC line, this is the OC line, you can see coinciding with AB line, the ball can take up any radii under any conditions. The governor is said to be the isochronous governors. कि कोई भी रेडियाई लेंगे, देखो यहाँ पे सारे पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, आप इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, दे कोइंसाइडिंग। सो दिस टाइप ऑफ गवर्नर, अगर इस तरह से अगर कोई ग्राफ आता है, वैसे आएगा नहीं, सो यू कैन से दिस इज एन आइसोक्रोनस गवर्नर। सो इन योर एग्जाम अ क्वेश्चन में बी आस्क्ड, कैसे, ये क्या हो रहा है इसको, ओके just give me a few seconds, correct this. Okay. Yes, I was giving you the question type कैसे आ सकता है। इस तरह से वो कर्व दे दें आपको, ओके। ओके, और वो आपसे पूछ लें दैट ABC, these are ABC lines, ओके, ABC कर्व है, कर्व A, कर्व B, कर्व C,
This is curve A, this is curve B, this is C. Which of the following curve representing an isochronous governor? Okay, this is controlling force and this is the respective radii. Similarly here, F and R, कुछ माँ बाप तो होगा ना इस कर्व का, इस ग्राफ का. You have to represent कि यहाँ पे एक्सेस पे आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे फोर्स रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे रेडियाई ऑफ रोटेशन आपने रिप्रेजेंट किया है. यस और नो? सो दिस इज द आइसोक्रोनस गवर्नर. तो आप सीधा बोलोगे दिस इज द आइसोक्रोनस लीनियर. वो पूछने लग जाए विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर इज अ स्टेबल टाइप ऑफ गवर्नर, तो आप कौन सा बताओगे? यस, ये वाला है जी. कैसे पता चले कि आप जब स्पीड लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से, द स्लोप ऑफ स्पीड लाइंस इज लेस देन दैट ऑफ द स्लोप ऑफ, देखो यहाँ से ड्रॉ करोगे तो स्लोप इतना आ रहा है, दिस इज द स्लोप, और इसका ये स्लोप है, तो आप देख पा रहे होगे इसका स्लोप ज्यादा है as compared to the slope of the speed lines. Definitely this is the controlling force is higher and this type of governors are stable governors, and this is the unstable governors. If you draw the speed lines, these are the speed lines and you can see, अगर मैं एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करूं, दिस इज द स्लोप, तो ये स्लोप देखो कम है स्पीड लाइन से, सो यू कैन डायरेक्टली से कि दिस टाइप ऑफ गवर्नर इज अनस्टेबल गवर्नर. क्लियर हुआ? यस सर. ओके, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल बी कंक्लूडिंग विद दिस टॉपिक. सो shows a controlling force curve AB which sometimes may be obtained in some spring controlled governor. ये तो हो गया. If the friction is taken into account, the two curves of the controlling force are obtained in figure. ये आप देख पा रहे होगे. Thus in all the three curves of the controlling force are obtained. पहला for steady run, then neglecting the friction. दूसरा while the sleeve move up, then F is positive. अगर आप sleeve move up करेगी then friction force जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी ना, उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी क्योंकि स्लीव अप कर रही, मूव कर रही है अपवर्ड्स, तो हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट विल एक्ट इन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द टू रबिंग बॉडीज. अगर मेरी बॉडी नीचे आ रही है देन फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या कर्व की लोकेशन होगी? देन while the sleeve moves down, that is negative, F is negative, friction force is negative. The vertical intercept GH, you can see this is the vertical intercept, ये वाला portion signifies that between the speed corresponding to GH, the radius of pulse does not change while the direction of the movement of the sleeves does. In other words, the speed N1 and N2, the governor is insensitive at all the radii of the balls within the range. There are two speeds for no change of the radii. ठीक है? And the coefficient of insensitivity कैसे निकलेगा? जो ये insensitive zone है, इसका coefficient क्या है? That is N1 minus N2 by N is known as the coefficient of insensitivity, where N is the corresponding speed neglecting the friction. Right? Okay. एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं. Yes, ये हमने पढ़ लिया. Now checking the sensitivity of the governor, stability of the governor. You can see the slope. ये मैंने आपको बता दिया कि कर्व्स अगर मैं आपको दे दूं तो आप इससे पता लगा सकते हो कि आपका गवर्नर स्टेबल है कि नहीं. देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी N2 and N2 is greater than N1. फिर इसके corresponding मैंने vertical लाइन ड्रॉ करी R2. So you can see the radius is higher than that of N1 and N2 is also higher than N1. So you can see as R is increasing, N is increasing. That means stable governor. Here R is increasing but N is decreasing. You can say N2. You देखो, that is unstable governor. So for stability, the slope of the controlling force diagram must be more than that of the speed
line at each and every point. कंपैरिजन करते हैं, देखो दोनों के बीच में कंपैरिजन करो और देखो कि कौन सा मोर सेंसिटिव है और कौन सा मोर स्टेबल है। दो कर्व्स दिए हुए हैं आपको और प्लॉट करके भी दिखाया हुआ है। नाउ मुझे बताओ आप कि कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है। वैसे तो लिखा हुआ है लेकिन आप एक्सप्लेन करोगे। देखो इसको एक बार ध्यान से। यस अमन, गिव इट अ ट्राई, ट्राई टू एक्सप्लेन। अमन कुशवाहा, रोल नंबर 5। क्या समझ पा रहे हो उस डायग्राम से? देखो अभी आप क्लास में अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हो और क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, राइट? यस हो गया, बताइए। यस रोहित कुमार। यस रोहित, वांट टू आस्क समथिंग? रोहित, सर मुझे लगता है सेंसिटिविटी डेल्टा 5 पे डिपेंड करती है। अच्छा, और डेल्टा 5 मींस द स्लोप, स्लोप सर। चेंज इन स्लोप। और और सर N1 और N2 की रेंज पे डिपेंड करती है। देखो दोनों ग्राफ में कुछ चीज तो आपको कॉमन दिख रही होगी। देखो R1 एंड R2 ये आपको कॉमन दिख रहा है, मींस द रेडियस जो चेंज हुआ है। यू कैन सी द चेंज इन रेडियाई ऑफ दो गवर्नर्स है, एक गवर्नर ऊपर वाला एक नीचे वाला, गवर्नर 1 एंड गवर्नर 2। इसमें आप देखो यानी कि R1 और R2 जो चेंज हुआ है उसका गैप कॉमन है, देख पा रहे हो? दिस इज कॉमन, Yes. ये कॉमन है, ये बदला नहीं है। देखो ये लाइन यहाँ पे है और ये इनको पैरेलल लाइन से दोनों, इसका मतलब है ये गैप x था। अगर ये R1 और R2 जो चेंज हुआ है यानी कि डेल्टा R जो आपका चेंज हुआ है अगर वो कांस्टेंट है, इसका मतलब आपकी जो स्लीव की मूवमेंट थी, स्लीव की मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगी? R पे, वो भी कांस्टेंट हो गई। यहाँ अगर x मूव करी है स्लीव ऊपर या डाउनवर्ड, तो यहाँ भी x स्लीव मूव करी होगी। समझ पा रहे हो इस बात को? ये चीज समझ पाए? अरे मैं कह रहा हूँ ये गवर्नर है मेरा, ठीक है, आधा सेक्शन ले रहा हूं मैं इसको। अभी यहाँ था मेरा और यहाँ पे था R1, अब ये हो गया यहाँ से हटके इधर आ गया R2 पे, तो स्लीव यहाँ कुछ मूव करी होगी ना, इधर आ गई होगी ना ऊपर, यहाँ से हटके यहाँ आ गई ना स्लीव, तो ये गैप है, दिस इज द गैप x। अब मैं कह रहा हूँ ये R1 भी बराबर है और ये R2 भी बराबर है दोनों गवर्नर्स का, इसका मतलब ये x भी तो बराबर होगा, स्लीव मूवमेंट इस गवर्नर की भी स्लीव मूवमेंट और इस गवर्नर की भी स्लीव मूवमेंट दोनों बराबर होंगी। बोलो बोलो, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। इसका मतलब स्लीव मूवमेंट बराबर थी, मतलब मैंने बराबर स्लीव मूवमेंट के लिए देखा कि मेरा डेल्टा एन चेंज कितना हुआ, मतलब मेरा आरपीएम कितना चेंज हुआ इतनी स्लीव मूवमेंट करने के लिए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि पहले वाले जो गवर्नर था उसमें जो N1 और N2 का जो रेशियो था वो ज्यादा था, यानी कि N2 माइनस N1 की जो वैल्यू आ रही थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू इसका। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंसिटिविटी वाले में हमने पढ़ा था कि जितना कम आपके रोटेशन से, इंक्रीज इन रोटेशन से जितना डेल्टा एन कम होगा उतना गवर्नर ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो यह वाला गवर्नर सेंसिटिव हो गया ना ज्यादा,
क्योंकि यहाँ डेल्टा जो एन है ये उसी करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट के लिए स्लीव के लिए कम है एज कंपेयर टू ये वाला गवर्नर। इसका मतलब ये गवर्नर ज्यादा सेंसिटिव है। ये ग्राफ से हमने पता लगा लिया। समझे क्या कहना चाह रहे हैं इस ग्राफ से? यस सर। अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ लो। अरे भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मान लो ये गवर्नर था, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है। मान लो ये रेडियस थी मेरी 5, अब रेडियस हो गई बढ़ के 10। दूसरा ले लेता हूं मैं कलर। ये मेरी रेडियस आ गई 10। अब R1 मेरी 5 है और R2 मेरी 10 है। यहां तक किसी को दिक्कत? ना मेरी स्लीव पहले यहां थी, अब मेरी स्लीव यहां आ गई, तो दोनों में स्लीव का मूवमेंट x हुआ। x का मान लो मैंने कहा 2 सेंटीमीटर खिसक गई ऊपर, 2 सेंटीमीटर। अब मेरा दूसरा गवर्नर है, ठीक है, उसका भी जो रेडियस है पहला वो 5 है जिस पर रोटेट कर रही है उसकी बॉल्स, और जो दूसरा है वो है 10, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ना इसकी, ये भी 2 ही है। लेकिन अब मैं आरपीएम की बात करूं, इसका जो एन है ना ये N2 ये है 110 और ये N1 100 है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका जो N1 है इनिशियल स्पीड दैट इज ऑल्सो 110, ठीक है। बट जो इसका ये वाला दूसरा वाला जो है ना, ये सॉरी ये 100 है, N1 100 है इसका, इसका भी 100 तो इसका भी 100 ही लेंगे हम। N1 हटा दो उसको यहाँ से, N1 इज 100 बट N2 ये पहले वाले का N2 120 है। अब मुझे बताओ कौन सा गवर्नर ज्यादा सेंसिटिव होगा? वैल्यूज दे दी मैंने आपको। अब यहाँ पे डेल्टा एन चेंज कितना हो रहा है 20, और यहाँ पे डेल्टा एन चेंज कितना हो रहा है 10। 10। हो रहा है कि नहीं? मुझे ये बताओ, यहाँ डेल्टा एन मैंने 20 रोटेशंस बढ़ाए जब जाके मुझे 2 की डिस्प्लेसमेंट मिली, और यहाँ मैंने सिर्फ 10 आरपीएम बढ़ाए और मुझे डिस्प्लेसमेंट 2 की मिल गई। तो मुझे बताओ कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है, जल्दी ज्यादा कौन रिस्पॉन्ड करता है? अगर मैं इसका सिर्फ 10 बढ़ाता तो मुझे सिर्फ 1 ही मिलती। सेकंड है सर। फिर ये इतनी सी चीज समझ में नहीं आ रही है? मैं कल से समझा रहा हूँ तुम्हें ये चीजें, बोलते सर नहीं हो मुझे तुम। तो आ गई थी सर, पहले ही बोल दिया था मैंने तो। यस सर। नहीं बाकी बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, तो आपको नहीं कह रहा। रिप्लाई नहीं करते हैं ये, चुप बैठे रहते हैं, पता नहीं क्लास ले भी रहे हैं कि नहीं। ये समझ में आया? देखो भूलेगा नहीं कोई भी। आ गया सर। यस तुम सारे सारे अपने कैमरेज ऑन करो, आई वांट टू सी यू, क्या आप क्लास ले भी रहे हो कि नहीं। स्विच ऑन योर कैमरास। अटेंडेंस नहीं दूंगा आज की किसी को भी। यस, कैमरेज ऑन करो सारे, अपने चेहरे दिखाओ मुझे। यस आशुतोष, गुड हेयर स्टाइल। हमारे तो हेयर ही नहीं बचे बस स्टाइल के लिए। यस रोहित कुमार, अरे गुड।
सेविंग वेविंग किया करो। टाइम ही नहीं मिलता टाइम नहीं मिलता, क्यों? सर, और तो भी काम होते हैं। ओके, यस यस। अदर स्टूडेंट्स? मोहित? मोहित, दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन टुडे। गुड। ये ट्रेंड चल रहा है क्या ये डाडी का? मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा सेविंग का। यस यस, अमन, चंचल। यस, यू आर नॉट ऑडिएबल अमन। यस सर। अरे हमारा टॉपिक खत्म हुआ है यार, सेलिब्रेशंस करो। वी आर डन ओके विद सर। गवर्नर्स नाउ। Congratulations to you. You have successfully completed your governor topic. कितना कुछ समझ में आया ये तो पता नहीं। Yes. Who else? अमन कुशवाहा, चंचल। Am I audible? Am I audible? Yes sir. Okay, चंचल। Yes, अमन कुशवाहा, रोल नंबर 5। He is absent, मुझे लग रहा है सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है। Okay. He will be marked absent today. तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज आपको समझ में आ गया आई थिंक। नाउ यू, इफ आई गिव यू टू ग्राफ्स एंड मैं आपसे पूछूं कि कौन सा स्टेबल ज्यादा है गवर्नर, यू कैन इजीली फाइंड। ठीक है, अभी मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं और एक बार मुझे बताइए अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दैट गवर्नर एंड सेंसिटिविटी आल्सो। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे हमने देखा द सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इज 2 इज मोर, यस और नो? अभी हमने देखा, फाइंड आउट किया द सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इज 2 इज मोर। व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी कौन से गवर्नर की ज्यादा होगी, ये बताओ। सर फर्स्ट के। Yes, very good, very good. Because the sensitivity is inversely proportional to the stability of the governor. In last class, we discussed about the stability and the sensitivity relationship, and we developed an inverse relationship between the two. So, if the sensitivity is higher, the stability will be low, and if stability is high, the sensitivity will be low. Right. So these are some more graphs of spring-loaded governors in which the controlling force is like this straight line. This curve नहीं होता इसमें, ठीक है? And there is an intercept, you can see this is the x-intercept is making on stable governor, and you can see the slope itself. Slope से देखो, इसका slope ज्यादा है, controlling force का slope ज्यादा है, यहाँ पे controlling force का slope कम है, okay? And यहाँ पे आप देख रहे हो is merging with the speed line, and this type of governors are called isochronous governors. Similarly, in this you can also find the values for sensitivity of the governor, comparison आप कर सकते हो, okay? Now real controlling force diagram इस तरह का होता है। So because of the static friction, practically उस तरह का diagram नहीं आ पाता है। So at one equation, one position, infinite equilibrium speeds are there. So आप देखोगे इस तरह के ग्राफ आप बनते हैं एक्चुअल में, okay?
Okay, sorry for that disruption. Okay, so you can see this, and there's a numerical, you can try it. So this is all about your governor topic. We are now done with this topic, governors. Okay, so till now we have completed our 3 units. Okay, I'm giving you a question. Okay, this is A and this is B. So let me know which of the governor is more stable. स्टेबिलिटी की बात पूछ रहा हूं मैं, कौन सा गवर्नर ज्यादा स्टेबल होगा, ग्रुप ये गवर्नर ए या बी? बी। बाकी बच्चे बी। देख लो, सोच लो। सर ए है। आई एम आस्किंग द स्टेबिलिटी। यस। आई एम नॉट आस्किंग द सेंसिटिविटी। Stability of governor A is more or B is more? The B is B more. की देखो, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लो, और एक मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लो। सिमिलरली मैं एक लाइन ये ड्रॉ की और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, और मैं जो आपका ये है ना लोड कर्व, ओ सॉरी कंट्रोलिंग कर्व, इसका मैं स्लोप निकालता हूं, तो स्लोप आएगा ये, और इसका स्लोप आएगा ये। तो यहां पे देखो इसका स्लोप कम है एज कंपेयर टू योर स्पीड लाइंस, इसका मतलब इसकी अनस्टेबल गवर्नर, एंड ये है आपका स्टेबल। समझ पाए? Yes, sir. Okay. So, anyone has any other doubt regarding this topic? सर वही क्वेश्चन था एक। कौन सा? सर आपने दिखाया था ग्राफ में, तो हम्म, पहले वाले की सेंसिटिविटी कम थी। कौन से वाले में? जो अभी ये क्या है? ये वाला? ये सर जो आपने बनाया था ना अभी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बोलो, उसमें क्या था? तो उसमें पहले वाले ग्राफ में सेंसिटिविटी कम थी, हाँ बोलो फिर आगे। सर दूसरे में ज्यादा थी। सर अभी आपने बताया कि इसकी सेंसिटिविटी कम हो वो स्टेबल ज्यादा होगा। हाँ देखो मैं बताता हूँ, तो मैंने कौन सा, मैंने तो सेंसिटिविटी की बात ही नहीं की, मैं तो स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ ना। सर सेंसिटिविटी कम है ना पहले की। अरे तो मैं वो बना रहा हूँ ना डियर, अभी बना तो रहा हूँ मैं उसको। वो मैंने इस तरह से बनाया था ना ये ग्राफ ऐसे, और दूसरा मैंने बनाया था इस तरह से, यही बनाया था मैंने। यस सर। ओके, नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली दो लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ये ड्रॉ किया और एक मैंने ये ड्रॉ किया, दो लाइन ड्रॉ की। दिस इज n1 क्योंकि इसकी स्पीड कम है, एंड दिस इज n2। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ प्लॉट करता हूँ नीचे। अब मुझे बताओ, जब मेरी स्पीड n1 थी तो मेरा रेडियस ज्यादा था r2, और यहाँ पे जब मेरी स्पीड बढ़ी तो r1 हो गया, रेडियस कम हो गया। तो यहाँ सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी की तो बात ही नहीं आई, ये तो गवर्नर ही अनस्टेबल हो गया। आप ये रिलेशनशिप इसमें लगा ही नहीं सकते। नहीं बात समझे? अरे जो स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो ना रेसिप्रोकल वाला, वो आप स्टेबल गवर्नर्स में लगा सकते हो, जो दो स्टेबल, देखो ये और ये वाला गवर्नर, ये वाला गवर्नर और ये वाला गवर्नर, दोनों स्टेबल गवर्नर्स हैं, लेकिन दोनों की सेंसिटिविटी में फर्क है। यहाँ तो गवर्नर स्टेबल ही नहीं है ये। बात को समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। स्टेबिलिटी
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। ये सिर्फ लगेगा आपके स्टेबल गवर्नर्स में। अगर यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है तो आप सेंसिटिविटी कैसे फाइंड आउट कर लोगे? ये तो गवर्नर ही अनस्टेबल है। नहीं सर, मैं रेडियस से और कंट्रोलिंग फोर्स से रिलेशन में देख रहा था। हाँ तो अगर बच्चे रेडियस तो इसकी वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखो आपने स्पीड बढ़ाई, n2 कर दिया तो रेडियस घट गया ना उसका। इसका मतलब तो अपोजिट हो रहा है ना। यू आर इंक्रीजिंग n1, n बढ़ाया और r आपका घट रहा है, इसका मतलब तो उल्टा हो रहा है ना। ये तो गवर्नर अनस्टेबल हो गया। नहीं समझे बात को? n1 अगर बढ़ेगा r1 बढ़ना चाहिए, दैट मीन्स इज अ स्टेबल गवर्नर। एक गवर्नर ये था और दूसरा गवर्नर था, उसमें भी n1 बढ़ रहा है, r1 बढ़ रहा है। बट जो r1 बढ़ना है ना उसका, जो बढ़ना है r1 जो बढ़ रहा है उसका, वो कम आरपीएम पे बढ़ रहा है। इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर मैं इससे